Namaskar and welcome to Sunset Television. This is a special broadcast wherein we are going to bring you all the details of the counting of votes which is underway for the presidential election. I am Vishal Dahiya and with me is my colleague Manoj Verma as well. जी बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आपसे कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा और देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। नतीजे शाम तक आने की संभावना है। राष्ट्रपति चुनावों में सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो गई है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध पाए गए हैं। राज्यसभा महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी जी ने कुछ देर पहले इसकी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,78,000 और श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,45,600। We're also joined by our correspondent Kriti Mishra from inside the Parliament. She's keeping a track of all the developments there. Kriti, welcome to this special broadcast. Now, the information which the returning officer gave, that shows that the NDA's presidential candidate seems to have a clear edge in the first round of counting, and that round included the counting of votes of all the members of Parliament. That is a very sizable lead she has there. 1, 2, 3. Kriti? Yes, Vishal. Pardon me, Vishal. Kriti, I'm saying after the the announcement from the returning officer there, it seems that the NDA's presidential candidate Draupadi Murmu seems to have a very clear edge, 540 versus 208 from the Electoral College of Members of Parliament. So, what's the latest as of now coming in from the counting centre there? Looks like, Vishal, after the first briefing from the returning officer of the presidential polls of 2022, who's also the Secretary General of Rajya Sabha, Mr. PC Modi, he briefed the media after the counting of votes for the first round, which includes members of Parliament. Remember, members of Parliament who voted in Parliament in New Delhi, also members of Parliament who voted outside Delhi in their respective states. The entire calculation was done and 15 votes were found invalid, and thereafter, as you're talking about the lead that NDA's nominee Draupadi Murmu has. Right now, if we talk about the counting centre, the counting of votes of the states, that has begun. And of course, since we go by alphabetical order, so the first state, of course, was Arunachal. And as we speak, right now, the counting for the states of Assam and also the state of Bihar, that is on right now. And thereafter, since again it is alphabetical order, thereafter it would be Chhattisgarh, Goa and Gujarat. So earlier we were anticipating that the results would be out around 3:30 or even 4 p.m. But this looks highly unlikely right now because there are several states and UTs as well. And thereafter the vote quota will have to be seen. And then we are expecting the results somewhere late in the evening today, Vishal. Back to you. Okay, Kriti, now let's also talk about the Electoral College a bit, try and understand these votes which are being counted there. What the returning officer said, that adds up to 748 votes of the members of Parliament. So in effect, what was the exact percentage of polling when we're talking about the members of Parliament and the overall Electoral College as well? Right, Vishal, let's get into some mathematics here because this is a pretty tough formula as we go by for the presidential election in India. Well, remember, for the 2022 elections of the president election, the total number of the MPs who were eligible to vote, that stood at 776. As far as the legislators of these state assemblies are concerned, they were 4033. So the total number came out to be 4809. And why are we looking at these numbers? Of course, earlier in the earlier elections, this number was bigger because of the fact that Jammu and Kashmir
also had legislators, but right now, since there is no assembly right now, so we are looking at the reduced numbers and talking about the formula and the value of votes of each of the members, of course, of parliament and assemblies. Remember, for the members of parliament, the value is 700. And as far as the states are concerned, the value of the votes of each legislator depends upon the population of the state. And that population, that number has been taken from the census of 1971. So if we talk about the states, the biggest value, of course, is of Uttar Pradesh, which stands at 208. And where we are reporting from, national capital of Delhi, the UT, there the value is around 58. And the second number in terms of the state and the value, that stands for Jharkhand and also for Tamil Nadu. The smallest value is for Sikkim, which stands at 7. So it is a complicated formula wherein the total value of the valid votes, that is divided by 2 plus 1, and then the vote quota is given. Because remember, this is to bring to the notice of our viewers here that the entire process of election of president in India, that involves proportional representation by means of a single transferable vote, which implies that vote would be given according to the preference. So on the 18th of July, when the members of parliament and the elected members of state legislative assemblies had voted, it was according to the preference, wherein there is no election symbol. There are two columns, one of course of the candidate and the second of the preference. So if there is no preference, the vote would be considered invalid. And if there are two preferences, it will still do. But first preference has to be there. So this is the system that is being used, that is used in the presidential election of 2022. Okay. So we'll have to see how it pans out. Okay. And we'll keep giving the constant Okay, updates. Back to you now. since you're talking about the figures here, one more interesting aspect which we would like you to explain to our viewers. What's the magic number here in the changed number scenario? Because the numbers are different from what we have seen in the previous presidential election as well, because of certain changes vis-a-vis the state of Jammu and Kashmir, the union territory which it is now. So what's the magic number here which one of the candidates will have to cross, the figure? Kriti? जी जी, जाहिर तौर पे विशाल दहिया जी, जो जिस तरह के परिणाम उभर के सामने आ रहे हैं, हालांकि सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हुई है और उसमें एक साफ तौर पे बढ़त द्रौपदी मुर्मू जी ने हासिल की है और राज्यों के परिणाम शाम तक जब आएंगे तो स्थिति और साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है, कुल 15 वोट अवैध पाए गए हैं, इसमें ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोबारा कृति जी हमसे जुड़ेंगे तो उनसे इस संबंध में जानकारी लेंगे। ये 15 वोट जो अवैध पाए गए हैं वो कैसे वोट थे, कौन से वोट थे, किसके वोट थे। लेकिन एक बड़ा सवाल क्रॉस वोटिंग का भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसकी तस्वीर भी अभी जब स्पष्ट होगी, क्योंकि सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हुई है। क्या सांसदों के स्तर पर भी विपक्ष में कोई सेंध लगी, क्या कोई क्रॉस वोटिंग हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल विशाल जी उभर के सामने आएगा। Indeed, and in fact, this becomes really interesting here, Manoj, because there is no whip which is being issued in these elections. So of course the members can go ahead and cast their votes as per their preference. Kriti is back with us. Kriti, two aspects which we would like to understand here. One, as I was asking you earlier, is in terms of the magic figure, the magic number which either of the candidates will have to cross to be, declared the winner. That is one. And as Manoj was pointing out, some votes have been found invalid as well. So do we have a detail on that as well? Well, Vishal, as the day pans out, because remember, right now the counting of only the members of parliament who voted in parliament and other respective states, that has been calculated. And as the votes are going invalid, we don't know how the day pans out because, of course, the green slips, because that indicates the votes of the MPs, and also the pink slips right now, which indicates the votes of the respective members of the state legislative assemblies. We'll have to see how many votes actually turn out to be invalid, and then we'll be able to talk about that figure. But as far as the NDA nominee is concerned, remember, because here we have the authorized representatives of the opposition as well and of the NDA nominee as well. So as far as the NDA nominee is concerned, the authorized representative is the Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and also Union Minister Bhupendra Yadav. And as far as the opposition is concerned, so there are three authorized representatives, Javed Ali Khan of the Samajwadi Party, also Sukhendu Shekhar Rai of the TMC, and Shanmugam of the opposition. They are representing. So they have different stances. As far as the NDA nominee is concerned, the NDA is maintaining a very confident position here right now,
saying that they would be crossing at least 75%. That's Ji. what the NDA is saying. And as far as the opposition candidate is concerned, the representatives of the opposition's candidate, they are also saying, let's wait for the final tally. So the day is still shaping up. And as we were earlier anticipating, and I already told this to our viewers, that we were anticipating that the results would be out by Ji. 4 o'clock or 3:30. That is not happening anytime soon right now, because it is just Arunachal that we have calculated so far. We have reached Assam and Bihar right now as we speak. Back जी to you, बिल्कुल बिल्कुल Vishal. कृति जी, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा, जो पहले चरण की वोटिंग हुई है, सांसदों की वोटिंग जो पूरी हुई है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज देश में एक नया इतिहास बनने वाला है। देश की 15वीं राष्ट्रपति जी का थोड़े ही समय के बाद विधिवत रूप में घोषणा हो जाएगी। किसी के मन में संदेह नहीं है। हमारी देश की समाज की एकदम सामान्य घर से आने वाली, आदिवासी परिवार से आने वाली, हमारे उड़ीसा की मयूरभंज जिले की एक आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ घंटों के बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति जी के नाम पे चुने जाएंगे। So there it is, seems very confident. The cabinet minister pointing out clearly that, the NDA presidential nominee is maintaining her lead and is likely to win. It looks like that as well, but of course we'll have to wait for the final numbers. Interestingly, before we move ahead, and then Kriti will join us soon on that aspect also. But Manoj, let's also talk about the two candidates here, a bit more in detail. Draupadi Murmu on one hand, nominated by the NDA, the ruling dispensation, and Yashwant Sinha on the other hand, the joint opposition candidate. जी बिल्कुल विशाल जी, जो आपने ये इस चीज़ को सवाल जो उठाया है वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए, वो राज्यपाल थी, झारखंड की संवैधानिक पद पे रही हैं, और दूसरी तरफ जो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, उनका भी एक लंबा अपना राजनीतिक कैरियर रहा है, केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, एक लंबा उनका अनुभव है देश की राजनीति को लेकर। अगर हम बात कहें, कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने देश की सेवा की है, लेकिन जिस तरह का गणित था इस राष्ट्रपति के चुनाव में, वो जाहिर तौर पे साफ था कि जो पलड़ा भारी था वो एनडीए का था, और विपक्ष और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल विशाल जी ये भी है कि संयुक्त विपक्ष अपने आप को उस तरह से एकजुट नहीं रख पाया जिस तरह की तस्वीर अभी सांसदों के वोटों की गिनती की उभर के सामने आई है। मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तब पता लगेगा कि सांसदों के स्तर पे भी क्या विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई है, किस दल ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है, क्योंकि तमाम तरह के सवाल मतदान के दिन भी खड़े हुए थे, मतदान से पहले भी खड़े हुए थे। ये अपने में दिखाता है कि दोनों उम्मीदवार अपने अपने जो उनके कैंप थे, अपने अपने जो दल थे, उसमें वो मजबूती के साथ थे, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तरह के ये पहलू देखने वाले होंगे, क्योंकि हर चुनाव का अपना एक सियासी संदेश होता है, अपने उसके मायने होते हैं, अपने उसके संकेत होते हैं। तो ये सियासी संदेश क्या है, इसके मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं, हम ये समझेंगे भी और अपने दर्शकों को, अपने खास मेहमानों के साथ हर पल की जानकारी देंगे भी विशाल जी। जी बिल्कुल। और ये जो जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण जब पूरे तौर से आंकड़े सामने आएंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा कि किस तरफ ज्यादा वोटिंग हुई है, कितनी वोटिंग की उम्मीद थी लेकिन उससे ज्यादा या उससे कम मिला है, तो क्यों मिला है। अगर उम्मीदवारों पे दोबारा आए और उम्मीदवारी की बात करें मनोज जी, क्योंकि ये पूरे जो प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप नज़दीकी से देखते रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं, किस तरह से जो दोनों उम्मीदवारों का चयन है वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था इस चुनाव में, खासतौर पे विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए। जी विशाल जी, अगर बात एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की मैं करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बीजेपी के नेताओं को कवर करते हुए, एनडीए के नेताओं को कवर करते हुए देखा और सुना, साफ तौर पे जाहिर तौर पर एक जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में अलग अलग स्तर पर इस बात को कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश की एक महिला जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनका राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण
पहलू है। अगर आप आदिवासी वर्ग की बात करें तो अभी तक देश में कभी इतने बड़े पद पे कोई आदिवासी नहीं पहुंचा था। जाहिर तौर पर यह समाज की दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी, हमारी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव देश के लिए है। दूसरी ओर जहां तक यशवंत सिन्हा जी का सवाल है, वो चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जिस तरह से एकजुट रह सकता था उस तरह से भी एकजुट नहीं रह पाया। कई नाम चर्चा में आए विपक्ष की ओर से, शरद पवार जी का नाम चर्चा में आया, फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम चर्चा में आया, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। आखिर तौर पर यशवंत सिन्हा तैयार हुए, चुनाव लड़े। चुनाव में वोट कितने मिले, हार जीत होती है, कोई लड़ेगा तो कोई जीतेगा, एक हारेगा भी, लेकिन लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है विशाल जी कि चुनाव हुआ और चुनाव हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार देखने को मिल रहा। पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे यहां राष्ट्रपति का चुनाव कितनी पारदर्शिता के साथ और उसके साथ होता है। Indeed, the beauty of the Indian parliamentary democracy is that we are seeing an election being very keenly fought by both the candidates, both the sides, and now the counting of votes is underway. We can see some visuals out there as well on your screens. Anticipatory celebrations coming in from the NDA camp there, where the presidential candidate is Draupadi Murmu, as per the initial reports, and she has a very sizable lead over the opposition candidate Yashwant Sinha there. We'll keep on bringing you the details also in terms of the counting of votes of the MLAs from various states as well, which is ongoing right now. We're joined by Navvikram as well. Navvikram, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आप जहां मौजूद हैं वहां इस वक्त किस तरह की सुगबुगाहट है? जी विशाल, मैं इस समय मौजूद हूँ जो द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ जो टेम्परेरी रेजिडेंस दिया गया है उमा शंकर दीक्षित मार्ग पर, वहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ गहमा गहमी है, जाहिर है, और जब पहले राउंड के जो नतीजे आए हैं उसके बाद यहाँ गहमा गहमी तेज़ हो गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ या फिर और पत्रकारों की भीड़, और इसके अलावा जो कि सरकारी अफसर और सिक्योरिटी है उनके भी लोग आ चुके हैं। तो एक बड़ा यहाँ पर दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी कई कहानियाँ हैं द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, कि उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, चाहे वो उस समय राज्यपाल हों या फिर उससे पहले। तो बड़ा ही यहाँ पर दिलचस्प नज़ारा है। साथ ही गहमा गहमी यहाँ पर तेज़ होती नज़र आ रही है। जी विशाल। नवविक्रम जी, आप वहां पर मौजूद हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी वहां कब पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री क्या वहां कोई पहुंचे हैं, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम वहां पर है, कोई इसकी जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर जो अभी सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने के बाद फिर यहाँ जो बीजेपी के आला नेता हैं, कुछ नेता यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के आला नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, जाहिर है कि जो बधाई देने के लिए यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहेगा, जो कि एनडीए की ओर से सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य जो दल हैं उनके भी लोग यहाँ, अन्य दलों के भी लोग यहाँ पर पहुँचने की लगातार अभी भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। जी मनोज। जी नवविक्रम जी, अगर बात ओडिशा की जाए, जाहिर तौर पे आप वहां भी गए थे, आपकी कुछ ऐसी जानकारियां कुछ आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ जो आपको खास तौर पे वहां के लोगों ने बताई हो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? मनोज जी,
बड़ा दिलचस्प वाकया है, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट की तो कई अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, उनके बचपन के जो साथी थे, गांव के लोग, उनसे मिलना हुआ। तो बड़ा मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा ज़रूर शुरू में आपको बताना चाहूँगा कि द्रौपदी मुर्मू जी आज से 6 दशक पहले जब उनके गाँव में सिर्फ प्राथमिक स्कूल था, तो प्राथमिक स्कूल में वो जब शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो प्राथमिक स्कूल के बाद वहाँ माध्यमिक शिक्षा के लिए विकल्प उस तरीके से मौजूद नहीं थे। तो गांव में एक बार नेता और अफसर आए और द्रौपदी मुर्मू जी ने बेखौफ होकर, एकदम निडर होकर उनके बीच में जाकर सवाल पूछा कि मेरी प्राथमिक शिक्षा तो हो चुकी है, आगे की शिक्षा का क्या होगा। तो उनकी इस निडरता से और साथ ही उनकी जो प्रतिभा है, उन नेताओं ने, उन अफसरों ने परखा और उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए भुवनेश्वर भेजा गया। उसके बाद हम जानते हैं कि भुवनेश्वर से उन्होंने जो रमा देवी विमेंस कॉलेज है उससे अपनी ग्रेजुएशन की, उससे पहले माध्यमिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल जो भुवनेश्वर है उससे ली और उनके आगे का रास्ता खुला। मैं बिल्कुल जो उनकी निडरता उस समय जब वो प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुकी थी, उसके बाद की निडरता और आज आप देखिए शायद उस निडरता का ही नतीजा है कि आज वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की रेस में है। कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह का संघर्षमय जीवन द्रौपदी मुर्मू जी का रहा है वो हर कोई जानता है, वो एक प्रेरणा वाला उनका जीवन रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पद के चुनाव के जब नतीजे घोषित होंगे तब हमारे सामने और भी कुछ तस्वीर उभर के क्लियर होगी किस राज्य में कितने वोट मिले हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मौजूद हैं मुकेश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो गणित उभर के सामने आ रहा है, खासतौर से सांसदों के वोटों की जो मत पड़े थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसकी मतगणना पूरी हुई है। साफ तौर पर मुकेश जी, जो तस्वीर उभर के आ रही है वो बिल्कुल एक तरफा तस्वीर उभर के आई है। अगर मैं सांसदों के मतों की मैं बात करूं तो एक तरफा तस्वीर उभर के सामने आ रही है। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या मायने हैं इसके? 540 बनाम 208। दरअसल मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। ये सिर्फ 540 बनाम 208 नहीं, दरअसल द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन को विरोध करने का कोई तर्क विपक्ष के उम्मीदवार के पास नहीं बचा था। खुद जिन्होंने प्रपोज किया था, उन जिस तृणमूल कांग्रेस से वो आए हैं जी, यशवंत जी इस्तीफा देकर, और उन्होंने कहा था कि मैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए आया हूँ। उसी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो बोले कि अगर हमको ये पहले बता देते कि द्रौपदी मुर्मू इनकी उम्मीदवार होंगी तो शायद हम ये उम्मीदवार न उतारते। तो जाहिर तौर पर विपक्ष के पास उनका विरोध करने का तर्क खत्म हो चुके थे और ये नॉमिनेशन भरने के तुरंत बाद जाहिर हो गया था कि ये हमेशा यही तस्वीर सामने आनी है। बहुत सारे विपक्षी दलों ने जो अपने आप को विपक्ष में कहते हैं, मानते हैं, बैठते हैं, उन लोगों ने समर्थन करने की घोषणा कर दी थी। तो अब कोई बचा नहीं था कि ये चुनाव का नतीजा ये ना हो जो अभी सामने आ रहा है। जी राकेश शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं तस्वीर उभर के आ रही है, और खास तौर से अगर इसके हम मायने समझना चाहें कि राष्ट्रपति का चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मन रहा है और ऐसे में एक आदिवासी समाज से आई हुई महिला उस सर्वोच्च पद की तरफ बढ़ रही है, आप कैसे देखते हैं सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पे भारत में जब ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ ये कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इन सारी बातों को यदि आप दृष्टिगत रख के देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें एक दलित व्यक्ति को लाया गया और शीर्ष पद पर दलित व्यक्ति को बिठा के ये मतलब पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया है कि भारत में कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है, यदि उस दृष्टि से भी देखा जाए तो समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को शीर्ष स्थान पे लाने के एक प्रयास के रूप में पहले भी किया गया और एक बार उसी पहल को आगे बढ़ाया गया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के जरिए। रही बात आप जो समीकरण की बात करें कि 540 और 208 का, तो मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि भारतीय राजनीति इस समय पर धर्मवाद और जातिवाद की धुरी पे चल रही है, और धर्मवाद और जातिवाद की धुरी पे मुझे लगता है कि कोई भी सांसद या विधायक
विरोध करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वोट का डर सताता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासी वोट महत्वपूर्ण है, उन क्षेत्र के सांसद और विधायकों के मन में एक डर था, और उसी डर के चलते शिवसेना के विधायक और सांसदों ने दबाव बनाया कि आपको यूपीए के साथ नहीं जाना है, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना है। बीजेडी ने समर्थन किया, यूपीए गवर्नमेंट की सहयोगी आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, और तमाम राज्यों के जो विधायक और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। उसका सिर्फ एक ही कारण था, वो कारण था वोट का डर। Mukesh ji, since you also spoke about, the candidature, the way the candidate has been chosen, and the way the opposition, seems to have jumped the gun as well. They perhaps could have waited for the NDA to go ahead and announce the candidate. That's one view, and then perhaps even float a particular name. Do you think it would have been a sort of a more interesting battle? Of course, the NDA seems to have the numbers on its own, but in terms of the choice of candidate, if it would have been a bit different. I have two formulation about this theory. One, as a ruling party, as a ruling combined, NDA should have tried for a consensus for president post, or otherwise UPA or opposition should have waited for NDA to come to them. But what happened particularly in opposition camp, that opposition was divided in three categories. One was UPA, which is clearly a opposition. One is Aam Aadmi Party, Trinamool Congress, which are trying to, they are having national ambition, of course, and they are trying to show that we are the real opposition. Third is those parties who are sitting on the fence. They may be sitting on the fence, but most of the time they have been leaning towards the ruling dispensation. Now, what happened in this case, that Congress was trying or waiting that NDA should approach for a consensus candidate, but in between, Trinamool Congress jumped the gun and announced the candidature. Now, what happens in this case is that when you jump the gun, you cannot expect for the consensus. Clearly, the numbers were in favor of NDA, and there was no chance for Yashwantji or any candidate for that matter. Now, in this scenario, opposition should have fielded a candidate who was so robust that the numbers should be looking somehow irrelevant, and people should feel that this is a candidate because the whip doesn't apply in this election. Yeah, but this is a candidate who should be our president. Come what may, what are the numbers are. Now, what NDA did, that they posed a candidate who was so robust that the Yashwant Sinha's candidature was having no political backing on it. That is it. Okay. So it was not just about the numbers, it was about the choice of candidate. The choice of the candidate. They should have fielded a candidate who was so robust that other parties were thinking, oh, we should do this. Why opposition could not bring up one Murmu? जी बिल्कुल मुकेश जी, आप जो बात यशवंत सिन्हा जी के बारे में, विपक्ष की राजनीति के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं उनके मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ। यशवंत सिन्हा एज ए लीडर जी इस देश के वित्त मंत्री रहे हैं, वो बहुत सम्मानित है हमारे लिए, और वो जो राष्ट्रपति, ये केवल विपक्ष की रणनीति की बात है। मैं सिर्फ रणनीति पर जा रहा हूं। वही रणनीति आपसे समझना चाह रहा हूं। बात यशवंत सिन्हा जी की भी नहीं है, विपक्ष की जो रणनीति थी, अगर शुरू से देखा जाए, तमाम नाम उभर के सामने हमारे आए कि शरद पवार जी का नाम सामने आया, चर्चा उनके नाम को लेकर भी हुई, सुर्खियों में वो भी रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम भी उभर के सामने आया, कई और नाम भी सामने उभर के आए कि उम्मीदवारी की जाए। लेकिन विपक्ष में जिस तरफ आपने इशारा किया उस रणनीति का, किसी नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति थी पहले से ही। लगता है कि विपक्ष को इस बारे में पहल नहीं करनी चाहिए थी। ये पहल, चूंकि नंबर सत्ता पक्ष के पास थे, ये सत्ता पक्ष की मैग्नानिमिटी पर छोड़ते, बड़प्पन पर छोड़ते कि वो उनके पास आए और कहें कि चलो एक आम सहमति का राष्ट्रपति चुन लेते हैं जी। और ऐसे में आप उनको कह सकते थे कि आप एक नाम बताइए, अगर अच्छा नाम है तो हम आपके साथ हैं जी। न विपक्ष ने दिखाई ये मैग्नानिमिटी, न दूसरे पक्ष ने दिखाई। राकेश जी, आप सहमत हैं कि जो रणनीति की जहां तक बात है उसमें चूक जरूर हुई विपक्षी दलों से? हाँ, निश्चित तौर पे मैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके यशवंत सिन्हा जी के अलावा कोई चेहरा नहीं था?
सबसे मूल प्रश्न यहाँ पे आता है, क्या इतने दलों के पास एक चेहरा नहीं था? जिन चेहरों को उन्होंने लाने का प्रयास किया, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों या दूसरे कोई हों, वो सब जानते थे, फारूक अब्दुल्ला जी सब जानते थे कि यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मतलब है राजनीतिक कैरियर पे ब्रेक लगाना, इसलिए वो लोग इस पे सामने नहीं आए। अंत में सारे विपक्षी दलों को जाकर यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति लानी पड़ी। हम तो ये कह रहे कि यदि आप, जैसा अभी मुकेश जी ने कहा, ठीक है, एक बार यदि सहमति बनती है तो ठीक है, यदि नहीं बनती तो आप यदि विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और देश में राष्ट्रपति का चुनाव यदि आप निर्विरोध नहीं होने देना चाहते हैं, तो कम से कम अपने विचार पटल के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छोड़कर आए हुए व्यक्ति को स्वीकार करके उसको उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। यही विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति में फेल कहा जा सकता है कि उसकी फेल रणनीति है। जी, अब बात सर्वसम्मति की आई। सर्वसम्मति अगर विपक्ष की ओर से बात होती है या सत्ता पक्ष की ओर से, हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तमाम दलों से बात की, एक सहमति बनाने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष की ओर से वो सहमति की तरफ कदम नहीं बढ़े और तमाम तरह के अलग अलग गुटों में विपक्ष बटा हुआ नजर आया। ये सर्वसम्मति का जो सवाल बार बार उठता है, हमने देखा पहले के चुनाव में भी, एक आध अब बात को छोड़ दें तो हर बार सहमति की बात तो होती है, सर्वसम्मति की बात भी होती है, लेकिन चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए फिर भी होता है। आप राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सहमति की बात कर रहे हैं। विपक्ष में कभी भी आपसी सहमति बनी ही नहीं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर आप देखिए, कभी इनमें आपसी सहमति नहीं थी और यही कारण है कि विपक्ष की एकजुटता नहीं हो पाती है। विपक्ष में सबके अपने अपने ढोल, अपने अपने राग होते हैं और कई जगहों पर तो इतनी विसंगतियां हैं कि यदि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस साथ में होती है तो तृणमूल अलग खड़ी दिखती है, कई जगहों पर दूसरे दल यानी शरद पवार अलग खड़े होकर दिखाई देते हैं। तो सबसे मूल प्रश्न ये है कि सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं और जब तक सबके राजनीतिक हित एक हित नहीं होंगे तब तक विपक्षी एकता नहीं हो सकती और इसलिए विपक्षी एकता की बात करना तो मुझे लगता है बेमानी होगा। Indeed, and consensus is of course the ultimate approach there, but the beauty of parliamentary democracy is elections, and whosoever the other candidate is, of course, there. I think it was a very apt chance to force this unity. These kind of elections are ample and good opportunity to force the unity, which is otherwise would not be there. I mean, opposition would remain divided. It's no surprising thing because there are competing groups, and even brute power of any ruling dispensation is such that they don't allow you to become united. And the beauty of any and they have their own political agenda and political considerations within the regions as well. Of course, Tamil Nadu would be thinking other way. Jagan Mohan Reddy would be thinking other way, Trinamool Congress would be going other way. But these elections are a chance to force unity, which I think opposition lost a chance. Okay. Now coming back to the candidature, and now that we're talking about two candidates, if we have to, summarize the candidate, the NDA candidate, the NDA nominee, who is now leading in the counting of votes and is most likely to be the next president of India, how would you assess her career so far in terms of what she's been through, what she has represented, and also the positions she has held, and how these experiences will add on to her, in the likelihood of her being elected as the 15th president of India? No, undoubtedly, I would not like to confine her to a community which is called Adivasi or Vanvasi community. As he rightly pointed out, she is the last person on the line, and if she is getting elected, India is getting elected. Her victory is victory of Ganatantra. So it's not a message to not only entire world, to entire India, that you may be coming from a very lower strata, from a village, from a very poor and humble background, but you can become president of India. So this is a movement to celebrate for entire India. And she, in terms of her administrative acumen and experience, she has that as well. She's been the governor. She has been governor. She's been a minister as well. Of course. And it's not so that any person can rise to this highest post. She must be having some kind of talent which has
driven her to that post. She is not only just Vanavasi. I mean, go to her qualification, to her struggle, the way she has risen from the rank in the BJP even. So she is commendable, having commendable talent to go to that post. जी मुकेश जी, एक सवाल बहुत बड़ा यहाँ ये भी उभरता है कि यशवंत सिन्हा जी ने जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, संयुक्त विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने कई मुद्दे उठाने की कोशिश की। विपक्ष ने भी ये तर्क दिया कि अगर हम अपना उम्मीदवार दे रहे हैं तो उसके पीछे कई मुद्दे हैं जो देश के सामने इस समय हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हम अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी समाज से आई हुई एक महिला जिसने देश में गवर्नर, राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं अपनी दी हैं, मुद्दों का जो मुद्दा है वो कितना अहम है? क्या ऐसे चुनाव में जो मुद्दे की बात की जाती है, विषय की बात की जाती है कि देश के सामने ये चुनौती है इसलिए चुनाव लड़ना है, वो कितना अहम हो जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दों से इसका चुनाव तय नहीं होगा जी। संख्या है वो एकदम तय है। एनडीए के कितने सांसद हैं, यूपीए के कितने सांसद हैं, दूसरे दलों के कितने हैं, विधानसभाओं में कितने हैं, ये सब तय था। अगर मुर्मू जी के बजाय कोई और होता, या अपर कास्ट से होता, लोअर कास्ट से होता, माइनॉरिटी से होता, तब भी तो जीतना उन्हीं को था, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी की। नहीं, यहाँ पर एक सवाल है राकेश जी, आदिवासी समाज से आई हैं मुर्मू जी, वो एक अलग विषय है, लेकिन जैसा अभी मुकेश जी ने कहा कोई और होता, क्या इतनी फूट विपक्ष में तब भी पड़ती, या आदिवासी जो उम्मीदवार है वो भारी पड़ गया विपक्ष पे? निश्चित तौर पे प्रत्याशी का चेहरा देखने के बाद ही विपक्ष अपने पत्ते खोलता है। यदि आपका उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू की जगह पे कोई दूसरा होता तो हो सकता है कि एनडीए में भी क्रॉस वोटिंग हो जाती, क्योंकि इसके पहले भी हो चुकी है। आपको याद होगा प्रतिभा पाटिल जी के चुनाव के समय पर शिवसेना एनडीए में थी, वोट दिया था प्रतिभा पाटिल जी को। अकाली दल ने भी एक बार एनडीए में रहते हुए दूसरों को क्रॉस वोट किया। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी यदि है और हमारा हित कहीं पे जहां सिद्ध होगा, राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि उस हित की ओर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे आप जो कह रहे हैं तो कैंडिडेट का बहुत बड़ा महत्व होता है, और यहाँ पे भी कैंडिडेट का बहुत बड़ा महत्व है। Mukesh ji, do you agree with this particular aspect? Although you've been pointing to almost the same thing, but as Rakesh ji is putting it forth, that in terms of choice of candidate, and you're also saying that, of course, the choice of candidate is more paramount than the issues which Manoj was referring to. Of course, in any election, the candidates will point out issues. But if you look at the electoral college and if you look at the numbers, they're almost clear. The picture is almost clear. It's not an election which was expected to go to wire. No, thing is, when everything is clear and odds are heavily against you, so we should salute Yashwant Sinha that he agreed to come to this to fight election. So he somehow tried to project this election as issue-based election. He somehow tried that, okay, numbers may be against me, but I am the good candidate. You are winning because you belong to the ruling party, which is having numbers in their hand. So I will salute Yashwant Sinha ji that he agreed not to open the field for the ruling party. Okay. जी, okay. चलिए मुकेश जी, और भी जो पहलू हैं इससे उससे आपसे समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नव विक्रम के पास जो इस समय मौजूद हैं। नव विक्रम जी, क्या जानकारी आपके पास है? अभी कैसा माहौल है वहां पर? जाहिर तौर पर जश्न की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? जी मनोज, बिल्कुल यहाँ पर जो सुगबुगाहट है वो और बढ़ चुकी है, क्योंकि नतीजे यानी जल्द ही जाहिर है कि आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में बात चल रही थी जो विपक्ष की एकता को लेकर, तो
देखिए, झारखंड की वो राज्यपाल रही हैं और उनका खुद का जो द्रौपदी मुर्मू का खुद का राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने हमेशा जो पक्ष विपक्ष में हम जब अगर उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी की तरफ से उन्हें जाहिर है कि समर्थन मिला, और झारखंड में भी जहां वो राज्यपाल थी वहां दोनों दल जो कि अभी मौजूदा सीएम अगर हेमंत सोरेन की बात करें या इससे पहले जो रघुवर दास की बात करें, जो एक सामंजस्य है, उन्होंने हमेशा पक्ष विपक्ष का सामंजस्य बनाए रखा और इसी का नतीजा है कि वहां झारखंड में भी आज बेहद खुशी का माहौल है। और जहां राजभवन में वो रही बतौर राज्यपाल रही हैं, वहां के लोगों में भी मुझे जानकारी मिली कि उत्साह का माहौल है। साथ ही एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने जब आदिवासी हितों की बात हुई तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी हितों पर उन्होंने पार्टी लाइन या किसी को पकड़ा हो। उन्होंने अपने संवैधानिक जो दायित्व है, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए जो संवैधानिक दायित्व रहे उनका पूरी तरह निर्वहन किया। उन्होंने जहां बीजेपी की ओर से जब रघुवर दास थे उन्हें नसीहतें दी, साथ ही हेमंत सोरेन सरकार को भी उन्होंने झारखंड में नसीहतें दी। तो इसका एक जो बावजूद इसके पक्ष और विपक्ष झारखंड में भी और साथ ही देश में हमने देखा कि कई जगह उनके पक्ष में माहौल बना हुआ है और कई राजनीतिक दलों का अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ लोगों का भी, सांसदों का भी उन्हें समर्थन हासिल हुआ। जी नवविक्रम, आप बने रहिए। वहां द्रौपदी मुर्मू जी का जो इस वक्त टेम्परेरी निवास जिसे कहा जाए, फाइनल जो चुनाव की परिणाम की घोषणा है उसके आने तक का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मुकेश जी, आई लाइक टू ब्रिंग यू इन हियर व्हिच Navikram was referring to, and there is something which I was trying to bring in that element earlier in terms of Draupadi Murmu's administrative acumen, in terms of her journey as an administrator, and when we're talking about her experiences as a governor, as Navikram was referring to, she didn't hesitate in ticking off either government. Thing is, these posts, either of governor or of a president, are ceremonial posts in our democracy, and there are very dotted lines, where you have to follow these lines. So there's not much challenge, but on the critical occasions, they will have to rise to their stature, and I think Murmuji have been rising to her stature as and when some critical moment came. Critical moment in the life of a governor are that she or he is facing a hung assembly. This may be. Other may be law and order situation is going out of hand of a state government. So these are two kind of situations where governors or for that matter, and perhaps hotly debated or hotly contested piece of legislation as well. Now, there are certain candidates who would follow the dotted lines. There are certain leaders, certain governors, presidents who would not follow the dotted lines, will go to their wisdom. We have seen, I remember K.R. Narayanan ji, who brought in a new kind of consensus politics when there is no party is getting absolute majority. He said, no, I would not invite any single largest party. The other person who is claiming to be forming a government should bring in the numbers. So these kind of movements makes a person little bit different. Otherwise, they follow the dotted lines. Okay, राकेश जी, आपका क्या मत है इस पे? जिस तरह से जो देखने को मिला है, जिस तरह से एक गवर्नर के तौर पर उनका जो कार्य प्रणाली रही है, और अब 15वीं राष्ट्रपति वो बनने जा रही हैं, जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो जो असर देखने को मिलेगा या जिस तरह का राष्ट्रपति देश को मिलेगा? हाँ, निश्चित तौर पे अभी तक जो भी राष्ट्रपति देश के निर्वाचित हुए हैं वो राज्यपाल के पदों से ही आए हैं, और राज्यपाल का पद बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है और उसके सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के चलने की चुनौती होती है। और यदि हम 2-3 नामों को छोड़ दें, हंसराज भारद्वाज जी, रमेश भंडारी जैसे कुछ राज्यपाल के नामों को छोड़ दें, तो देश के अंदर ऐसा कोई भी राज्यपाल नहीं हुआ जो किसी भी राज्य में रहते हुए विवाद से घिरा हो। तो इसलिए द्रौपदी जी भी गवर्नर के रूप में थी जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में थी झारखंड में। उसके बाद भी मुर्मू जी ने अपने मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए एक बिल को इसलिए वापस कर दिया था कि उस बिल में उन्हें खामी नजर आई थी, खासकर समाज के
ऊपर पड़ने वाले असर को लेके। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो प्रशासनिक तौर पे बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल बड़ा सुखद और अच्छा होगा। जी, लेकिन मुकेश जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्यकाल कैसा उनका रहा गवर्नर के तौर पे। जाहिर तौर पे जिस तरह की जानकारियां उभर के सामने आई हैं, जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने सही को सही, गलत को गलत कहने में कोई संकोच नहीं दिखाया। भले ही चाहे उनकी खुद की दल की सरकार वहां पर रही हो, आदिवासियों से संबंधित बिल था, उस पर भी उन्होंने दखल देना, अगर उचित लगा उन्हें तो उन्होंने दखल दिया। मेरा यहाँ एक सवाल है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी ने बार बार अपने वक्तव्य में यह बात कही, रबड़ स्टैंप शब्द की। भारत के राष्ट्रपति का संदर्भ में इस तरह का शब्द का हम कई बार देखते हैं कि इस तरह की चर्चाएं होती हैं। आप राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हमारे यहाँ, उसे कैसे देखते हैं? उसकी कार्य शक्तियां जो हैं, आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में? मनोज जी, मैं उनको थोड़ा, उनकी जो उन्होंने कहा है उसको थोड़ा और पॉजिटिव बना देता हूँ। दरअसल राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद ही, अगर वो रबर स्टैंप इस मायने में कह रहे हैं कि अंतिम मोहर तो राष्ट्रपति की ही लगती है। अब वो उनका प्रचार का दौर खत्म हो गया, अब तो नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं, कुछ लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं रबर स्टैंप का। ये देश, यहाँ की सरकार, यहाँ तक कि छोटे से छोटे व्यक्ति की नियुक्ति के पत्र आप उठा के देख लीजिए, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अंतिम मोहर उसी पद की होती है। He or she is the supreme commander. सुप्रीम कमांडर होते हैं। इस तरह देखिए, कड़वी राजनीति का दौर है ये, जिसमें किसी के प्रति रहम नहीं इस समय बरता जा रहा है। तो प्रचार के दौरान भी, चुनाव प्रचार के दौरान जो कड़वाहटें सामने आती हैं, नतीजे उसको भर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यशवंत सिन्हा जब इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उनको कोई उस बड़े पद को डिरेल करने की कोई इच्छा या असम्मान करने की कोई इच्छा रही होगी। लेकिन फिर भी इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसमें राष्ट्रपति एक देवता है, गण है, सबका सम्मानित है। सरकारों को उसके इशारे पर ही चलना है। हाँ, सरकारें ही उनके दिशा निर्देश तय करती हैं कि वो किस दिशा में जाएं। जी, राकेश जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि हमारे दर्शकों को भी ये बात पता लगे। हालांकि बहुत लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख हैं, उनकी कार्यशक्तियों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन फिर भी जब भी मैंने देखा, जितना मेरा अनुभव है, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक रबड़ स्टैंप शब्द जरूर निकल के आता है। आप कैसे देखते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हमारे यहाँ हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो उसके अधिकार हैं, आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मैं तब भी सहमत नहीं था जब मनमोहन सिंह जी को मूक कहा जाता था, और मैं आज भी सहमत नहीं हूं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी के लिए स्टाम्प का प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द मुझे लगता है राजनीति में इनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कारण ये है कि मनमोहन सिंह जी भी तब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद गलत क्यों हो गए? या तो तब अच्छे नहीं थे, तब भी गलत थे, तो फिर बाद में भी गलत थे। यदि तब अच्छे थे तो बाद में गलत नहीं हो सकते। उसी तरह से यदि आप मुर्मू जी को नीचे से लेके कहते हैं कि संघर्ष करते हुए अनुभव के साथ शिक्षित महिला यहाँ तक पहुँची है, और यदि वो तब रबर स्टाम्प नहीं थी तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद नहीं होनी चाहिए, और तब आपने क्यों नहीं कहा जब वो राज्यपाल के पद पर थी? तो तब भी आप यदि उन पे ये आरोप लगाते तो बाद में ये आरोप सही होता। तो मुझे लगता है किसी भी शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द कहने से पहले अच्छे से समझ-बूझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका शब्दों पर बहस भी बहुत हो रही है। मुकेश जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत क्लियर है, उसके फंडे बहुत क्लियर हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, उसके अधिकार क्या होंगे। ये देश वैसा नहीं है। मैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हमारा देश वो रशिया नहीं है जिसमें कि पुतिन अगर राष्ट्रपति रहेंगे तो अब उनके अधिकार रहेंगे, जब वो प्रधानमंत्री रहेंगे तभी वो सुप्रीम रहेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति पर ये पद निर्भर नहीं है। पद के अपने अधिकार सुरक्षित हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार अपने सुरक्षित हैं, और उस पर अपनी राय रखने का, उस पर अंतिम फैसला देने का अधिकार तो राष्ट्रपति का है ही। जी। Since we're talking about the post of the President of India, let's go a little bit in time, and till the time we have more updates on the results to come in terms of the counting of votes, which is still underway from the states. Let's try and understand one more aspect as well. And many people, many of our viewers would also be interested in knowing this peculiarity of the Electoral College for the post of President of India. Why and how it exists there?
I think this peculiarity is making this post a very unique post. President is not elected directly by the voters. Our president is elected by the representative of the voters. So that makes more sense, because if a representative may be winning because of certain local factors, and he is going to assemblies, he or she is coming to Lok Sabha and Rajya Sabha, but a wisdom of party, a wisdom of voter is always with him or with her, and that makes this post a very unique post. And that is why this is not an executive post, it's a ceremonial post which is acting on the behest of the cabinet. राकेश जी, इस मुद्दे पर जो इलेक्टोरल कॉलेज जिस तरह से बना है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, वो जो एक अलग ही बात है कि जो सांसद हैं वो और जो विधायक हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, और एक गणित है, उसके हिसाब से जो जनसंख्या है उससे मल्टीप्लाई करके एक वोटों की जो कीमत है वो लगाई गई है, तय की गई है कि कितना एक पर्टिकुलर विधायक या एक सांसद के वोट की जो कीमत होगी, और फिर उसे पूरा कैलकुलेट करके तब तय किया जाएगा। तो ये इतना पेक्यूलियर जो प्रोसेस है उसकी क्या अहमियत है? निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन का ही अपना बहुत महत्व है। अब आप उसमें पंचायती राज व्यवस्था में पंच से लेकर राष्ट्रपति तक का देखिए, हर जगह एक एक वोट का अपना महत्व होता है। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ भी वोट का अपना गणित रखा गया है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि के वोट का परसेंटेज क्या होगा, सिक्किम अरुणाचल जैसे छोटे राज्य हैं तो वहाँ के जनसंख्या के हिसाब से वोट का, लेकिन हम यदि अलग अलग राज्यों के वोट परसेंटेज को गणित करने की बजाय हम इसको समग्रता के साथ देखें तो हर वोट अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, और उन्हीं वोटों से राष्ट्रपति जैसा व्यक्ति का चयन होता है। तो मुझे इसमें एक चीज और पहलू बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है विशाल जी, कि अगर बात हम संघीय व्यवस्था की करते हैं अपने देश में कि हमारी संघीय व्यवस्था इतनी मजबूत है, ठीक है हमारे चुनाव होते हैं, कई तमाम दल हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद सबकी भागीदारी उसमें होती है। और जो संविधान निर्माताओं ने अगर हमारे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदान का एक जो नियम बनाया, जो तरीका सोचा उन्होंने, उसमें भी संघीय व्यवस्था हमारी कैसे मजबूत रहे उसका भी ख्याल रखा मुकेश जी। सांसद सदस्यों के साथ साथ जो विधायक वोट होते हैं वो भी इसमें वोट देते हैं, राज्य सारे इसमें शामिल होते हैं, तो वो हमारी संघीय व्यवस्था की तरफ भी इशारा करता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मैं तो देख रहा हूँ कि 70 साल पहले हमारी संविधान सभा ने जी इतना सोच समझ के सब कुछ किया है कि हमें आज तक उसमें कोई करेक्शन की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश जब आज़ाद हुआ ही था, जबकि हमको शासन करना नहीं आता था, जबकि हम अंग्रेज़ों ने हमको इस रॉ मुल्क को हमारे सामने दे दिया था, जब देश का बंटवारा हुआ था, उस समय उन्होंने इतना सोच समझ कर संविधान बनाया, इतना इसको चेक एंड बैलेंस डेमोक्रेसी के रखे कि सिर्फ व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो, क्षेत्र का भी हो, कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हो, राज्यों का भी हो, और उसमें राज्यसभा की व्यवस्था, विधानसभाओं की व्यवस्था, उनके जरिए किस तरह से राष्ट्रपति चुना जाए, हर व्यक्ति के वोट की कीमत कैसे उसमें समाहित हो जाए, ये मुझे लगता है कि बहुत सैल्यूट के काबिल बात है कि जो हमारे 70 साल पहले लोगों ने की, और उसमें अभी भी कोई मुझे संशोधन की आवश्यकता आज तक महसूस नहीं हो रही है। जी, let's take an update from our colleague in Parliament. Kriti Mishra is joining us. She's in front of the counting centre out there in the Parliament of India. Kriti, what's the latest update? Where have we reached in terms of the alphabetic order of the counting of votes from the states? Well, Vishal, I heard that very interesting discussion that you were having with our panelists in terms of the votes and also the value of the votes. So just for the information of our viewers there, let me take you through the value of votes and the number of states that have been counted so far. So first, of course, it was Andhra Pradesh in the alphabetical order. So there the value of the vote was 159. Thereafter came Arunachal, the northeastern state. The value there was 8. After that, it was Assam. The value of the votes there was 116. Thereafter, Bihar has already been counted. The value there has been 173. Thereafter, Chhattisgarh. The counting for the votes of the elected members of the Legislative Assembly of Chhattisgarh, that is also over. The value there stands at 129. Goa is also over, interestingly, which the value of the state stands at 20 for the legislators. And right now, as we speak,
the counting of the votes of the elected representatives of the Assembly of Gujarat is going on, wherein the value of the votes that stands at 147. And after this, there would be counting of Himachal Pradesh and Haryana. Back to you, Vishal. Okay. So it seems like that we are almost through with 1/3 of the states from where the the counting of votes has to take place. Is that right, Kriti? Seems like, and what we are hearing right now, that in a couple of moments from now, we may also have the briefing from the returning officer, who's the Secretary General of the Rajya Sabha for the presidential election of 2022. Because what we were hearing yesterday, earlier than this, was that till the votes for Jharkhand are counted, they would continue the counting. And so right now, as we speak, we are counting for Gujarat, thereafter Haryana, Himachal, and then Jharkhand. So thereafter, let's expect some trends. Okay. Back to you. Okay. Wonderful. So one question from yes, please, Mukesh ji. is there any report of any cross voting since votes for Chhattisgarh, Gujarat, and some other states where Adivasi vote are very in numbers? Are you getting some report of any cross voting from these states? So right now, the counting process is being continued in a very professional manner, and the sanctity of the entire election, wherein the election is talked about the secret ballot, that secrecy is being continued right now. We are only getting to hear about the invalid votes, and as far as the cross voting is concerned, that is left to the analysis of experts like you later in the day. Back to you, sir. Okay, perhaps on that issue, Mukesh ji, we'll have to come back to you once we have the final details out there, and it'll be a very interesting discussion when we talk about that aspect, as Manoj ji has been pointing it out from the beginning, that is one major aspect of debate there. बिल्कुल विशाल जी, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव की दृष्टि से। मैं कहूँ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर चुनाव के अपने संकेत होते हैं, अपने समीकरण होते हैं, अपने संदेश होते हैं। तो इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में, मतदान के दिन किस राज्य में कैसी क्रॉस वोटिंग हुई, जाहिर तौर पे जब परिणाम सामने आएंगे तो हर राज्यवार स्थिति सामने हो जाएगी। लेकिन बात चाहे ओडिशा की हो, बात चाहे झारखंड की हो, बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या कोई और स्टेट हो, कई स्टेट ऐसे हैं जहां से ये खबरें आई कि क्रॉस वोटिंग विपक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में हुई। इस तरह की अखबारों में भी खबरें आई और टीवी पे भी आई। आप कैसे देखते हैं इन खबरों को? मैं इसको वन वे नहीं देखना चाहता कि क्रॉस वोटिंग मुर्मू जी के पक्ष में ही हुई होगी। जी, ये बाद में पता चलेगा एनालिसिस से किस जगह किस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन आजकल के समय में बहुत आम सी बात हो गई है कि जब कोई पार्टी का व्हिप ना हो और जिसमें एक आदमी गुप्त मतदान में हिस्सा ले रहा हो, तो उसका अपना एक अंदर की अंतरात्मा कहीं ना कहीं इधर उधर बहकी जाती है। और पार्टी अगर उसको दबाव में वोट देने के लिए कह रही हो कि हम आपको तो इसी तरफ वोट करना है, तो हो सकता है कि वो अपने मन की कुछ बात एक्सरसाइज कर ले। इस दृष्टि से ये क्रॉस वोटिंग मुझे लगता है अहम है। जी बिल्कुल। वैसे मुझे जैसे कि लगा, हमने कल कई सांसदों से भी बात की थी, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों की स्थिति तो जानते ही हैं जी। तो मुझे एक उड़ीसा के ही एक माननीय सांसद ने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है जी। और इस तरह की रिपोर्टें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। I think we will have to wait for the final data to come in when we are going to talk about that issue. But looks like Diksha is also joining us, one of our other colleagues. Diksha, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। क्या ताजा जानकारी है आपके पास संसद भवन से? धन्यवाद विशाल। अगर अभी की बात करूं तो मैं संसद भवन परिसर के बाहर मौजूद हूं और बहुत जल्द देश को उसका 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है, लेकिन अगर अभी बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटें होती हैं वो 2 भागों में विभाजित होती हैं। एक संसदीय भाग होता है और एक विधानसभा से आई हुई वोट होती है। विधानसभा से आई हुई तमाम वोटों की जो गिनती है वो अभी हो रही है, प्रोसेस में है। लेकिन जो संसदीय वोट है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 748 मान्य वोटों में से 540 वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिली हैं और 208 वोट जो हैं वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिली हैं। अगर कुल मिलाकर यही कंपैरिजन देखते हैं हम तो 60% से ज़्यादा वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक जीती हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें, अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो वो भारत की पहली जनजातीय महिला होंगी और सबसे कम उम्र की महिला होंगी। एक उड़ीसा कनेक्शन भी है, उड़ीसा में गवर्नर भी रही हैं, उड़ीसा की हैं और साथ ही साथ वो वहाँ मंत्री भी रह चुकी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उड़ीसा से बीजेडी के सांसद अनुभव मोहंती। आइए उनसे जानते हैं कि एक उड़ीसा फैक्टर और दूसरा
एक महिला राष्ट्रपति। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। अगर हम देखें, उड़ीसा के लोग बहुत खुश हैं, अभी से ही जो उड़ीसा में है वो बहुत खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। दूसरा अगर देखें, अगर हम शीर्ष पद, सर्वोच्च पद पे एक मातृत्व का भाव देखते हैं तो किस तरह की फीलिंग है? अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो क्या बदलाव देखते हैं आप हमारे देश में? बदलाव बहुत उच्च कोटि का देख रहे हैं हम, और उड़ीसा से पहली महिला, आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति, जो भारत के सबसे बड़े पोजीशन जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उस जगह पर वो बैठी हैं, और हमारे लिए तो इससे बड़ा गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नवीन जी के साथ में इस चीज़ को लेकर, इस विषय पर आलोचना की थी, उसके बाद ही नवीन सर खुद आकर पार्टी बाउंड्री से बाहर निकलकर उन्होंने खुद पर्सनली सब एक एक विधायकों को, हर एक पार्टी के, एक एक सांसदों को, हर एक पार्टी के सबको उन्होंने निवेदन किया था कि हम सब मिलकर उड़ीसा की बेटी, या उनकी राखी सिस्टर बोला जाता है वहाँ पर, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी नवीन सर को राखी बांधी हुई है और दोनों एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा देते हैं। तो नवीन सर उनके लिए सबसे वोट मांगे थे, और आज इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी खुशी हम सबके लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल। अगर अनुभव, मैं जनजातीय समाज की बात करूं तो एक खुशी की लहर जनजातीय समाज के बीच भी बहुत है, क्योंकि 62 से ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ वहां पर मौजूद हैं, और वो लोग सभी बहुत खुश हैं कि अब ट्राइबल्स की जो आवाज़ है वो उठाई गई है, और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। इस पर क्या कहेंगे आप? बेहद खुश हैं सब, और 62 ट्राइबल्स जो आप बोल रहे हैं वो उड़ीसा से जो हैं, इनके लिए एक ऐसा मौका मिला है कि उनकी बातों को जितने ज़ोर से हम लोग आगे रखते थे, अब उनको और भी उम्मीद हो रहा है कि नहीं, और अब और कुछ अच्छा होने लगेगा उनके लिए। ट्राइबल कम्युनिटी को एक स्पेशल ऑनर, एक स्पेशल रिकॉग्निशन, एक स्पेशल पोजीशन मिला है, एंड स्पेशल पोजीशन नहीं बोल सकते, इट इज़ द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया। एंड इंडिया जबकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम लोग का है, तो वहाँ पर दिस शोज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, एंड दिस शोज़ आवर प्राइड। हम कैसे डेमोक्रेसी में जीते हैं और डेमोक्रेसी को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैसे हम डेमोक्रेसी में जीते हैं और कैसे हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, ये कहना था बीजेडी से सांसद अनुभव मोहंती का, जिन्होंने कहा कि ओडिशा में ही नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो उन्हें तो खुशी होगी, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से वेट कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रपति पद पर देखने के लिए। ओवर टू यू स्टूडियो। जी, तो ये थे अनुभव मोहंती बीजेडी के। वही बात मुकेश जी जो अब से थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, क्योंकि बीजेडी की बात करें या झारखंड की अगर बात करें, जो आपने जिसका जिक्र किया था, हालांकि इस मुद्दे पर बाद में बात आएगी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि बीजेडी जो अनुभव कह रहे थे। लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय द वे 18 votes were found invalid of MPs. You know, this is a very huge number going by the training they were imparted. I think this is इसमें शायद कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो एमएलए थे राज्यों के, उनको वोट देने का अधिकार 9 MLAs ऐसे थे। voted here. लेकिन अगर आप कह रहे हैं, ये मैं भी जानना चाहता हूं, और पहले भी मैंने इस बात को उठाया था कि 15 वोट करीब 18 अब होंगे, जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अगर 18 वोट अवैध पाए गए हैं या इनवैलिड पाए गए हैं, ये किसके हैं, कौन से हैं, क्यों हुए? We'll also have to wait for the reason here, you know, perhaps why it would have happened. There should be a reason, very solid reason, because they are public representative, they know how to vote. And you know, their voters may be not more educated, but they are very educated people about the voting pattern, the way they should vote. So it's a disappointing number, and we should go to the reasons why these invalid votes. One aspect, you know, because for that we will have to wait a little longer. But one aspect in terms of, I was looking at a very interesting figure, and you know, from the previous elections as well, presidential elections, in terms of the winning margin and in terms of the percentage of votes polled by the winning candidate, you know, the votes won by the winner here. If we look at the present numbers in the first round, which has already been officially announced, it's somewhere around 72% in favor of NDA's presidential nominee Draupadi Murmu. Now, that is likely to go up and go higher. And if you take a look at the previous elections also, this has been a very significant trend, apart from just one or two occasions where, you know, it went to the wire, it was a neck-to-neck election, something like that. Otherwise, the winning candidate seems to have somewhere around above 80% in any case. No, this is reflection of the composition we have right now.
we have more than, ruling party NDA is having more than 360 MPs support in Lok Sabha, and in Rajya Sabha the balance was balance is now in favor of ruling combination. So the result is reflecting the present reality. Is not surprising. Now they put up a candidate who is getting more votes, more Adivasi party votes. So that is adding to the tally. So it's not surprising. It was a foregone conclusion before the election. जी बिल्कुल, लेकिन एक जो तस्वीर थी, क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और एनडीए उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, उससे पहले एक तस्वीर जो उभर रही थी उसमें 13 या 15,000 करीब वोट एनडीए को जरूरत और थी। करीब 13,000 वोटों की और जरूरत थी एनडीए को बहुमत के लिए। लेकिन जो तस्वीर उभर के अभी आ रही है, हालांकि नतीजे जब स्पष्ट तौर पे सामने आएंगे तब पता लगेगा कितने प्रतिशत वोट द्रौपदी मुर्मू जी को मिले, कितने यशवंत सिन्हा जी को मिले, कितने वोट किसके पक्ष में पड़े, ये बात उभर के आएगी। लेकिन एक जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में 65% वोट उस समय को उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को मिले थे, जो इस समय हमारे राष्ट्रपति हैं। इस बार माना यह जा रहा है कि वो प्रतिशत बढ़ के 70 और 75 के बीच में हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये प्रतिशत इतना पहुंचेगा? नहीं, इतना तो पहुंचेगा ही। और मुझे लगता है कि ये सारा जो वोट प्रतिशत है बताता है कि एक सर्वसम्मति का जैसा उम्मीदवार बन के हमारे सामने आया है। जो पहले कभी एक टाइट रेस लग रही थी, उसमें एक महाराष्ट्र का थोड़ा योगदान रहा कि जहाँ पर शिवसेना का विभाजन हुआ, उनके सांसद, उनके विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। विधानसभाओं के चुनाव हुए, उससे भी तस्वीर काफ़ी बदलनी शुरू हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र ने काफ़ी कुछ बदल दी थी। उसके बाद जो उम्मीदवार की चॉइस है उसने खेल और बदल दिया जी। और विपक्ष लगातार बैकफुट पर चला गया और उसने एग्रेसिवली अपने उम्मीदवार को उस ढंग से फील्ड नहीं किया जिस ढंग से करना चाहिए था। तो नंबर उधर बढ़ते चले गए हैं और ये किसी भी रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार के लिए और किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए बहुत जश्न का विषय है। जी बिल्कुल मुकेश जी। राकेश जी, चुनाव हुआ, राष्ट्रपति पद के नतीजे भी कुछ देर में चुनाव के आ जाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को, कि राजनीति से परे होकर भी रिश्ते कैसे लोकतंत्र में हमारे यहाँ चलते हैं, कैसे हमारे यहाँ दल काम करते हैं, कैसी हमारी संघीय व्यवस्था चलती है, इसका भी रूप देखने को मिला है। जिस तरफ अनुभव मोहंती जी इशारा कर रहे थे, राकेश जी, नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर बीजेपी की विरोधी एक तरह से कहूँगा राज्य में सरकार है, लेकिन वो सभी दलों के, चाहे वो बीजेपी के हों, निर्दलीय हों, इस तरह के वीडियो वायरल आए, वो वोट मांग रहे थे द्रौपदी जी के लिए। इस राजनीति को आप, मैं राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब राजनीति होती है लेकिन ऐसी सकारात्मक राजनीति भी होती है? देश में सरकार चलाने के लिए, संसद चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि संसद और सरकार नियमों के साथ साथ परंपराओं से भी चलती है जी। और मुझे लगता है कि नवीन पटनायक जी की तरफ से जो पहल की गई वो राजनीति नहीं, वो समाज नीति थी। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने ये कहा था कि उड़ीसा की बेटी को, और उड़ीसा की बेटी यदि शीर्ष जगह पे बैठेगी तो उसमें समूचे उड़ीसा का सिर गर्व से ऊपर होगा। जैसे आज आपके संसद में, राज्यसभा में यदि धनखड़ जी बैठ रहे हैं और लोकसभा में बिरला जी बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे राजस्थान का सर गर्व से ऊपर होगा। तो ये बहुत महत्व रखता है और मुझे लगता है उसीलिए नवीन पटनायक जी ने सारे राजनीतिक सोचों को किनारे रख कर एक सामाजिक सोच लेके सभी सांसद विधायकों से कहा कि यहाँ पे बीजू जनता दल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम उड़ीसा की बेटी की बात कर रहे हैं और मैं नवीन पटनायक बात कर रहा हूँ। जी, तो ये भी काफी मायने रखता है, महत्वपूर्ण है, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू जिसे कहा जाए वो है। एक बार फिर दीक्षा कोहली का रुख करते हैं, वो संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। दीक्षा, आपके साथ एक और मेहमान हैं। जी बिल्कुल विशाल, मैं अभी सुन रही थी स्टूडियो में जिस तरीके से बात हो रही थी उड़ीसा की बेटी, और उड़ीसा से ही सांसद बालासोर से प्रताप चंद्र षडंगी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरीके से उड़ीसा में खुशी की लहर है, वैसे ही पूरे देश में भी खुशी की लहर नज़र आ रही है। लेकिन जब हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, क्योंकि उड़ीसा में उनका नेतृत्व भी रहा है मंत्री के तौर पर, राज्यपाल के तौर पर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम उनके नेतृत्व की बात करें तो किस तरह का नेतृत्व उनका था? आपका बहुत बहुत स्वागत भी है इसी के साथ षडंगी जी।
आज समग्र देश आनंदित है और विशेषतः उड़ीसा, क्योंकि पहला बार उड़िया एक आज राष्ट्रपति पदवी मंडन करने जा रहे हैं और एक महिला आदिवासी वर्ग से सामान्य परिवार से आकर के आज असामान्य आसन पर जा रहे हैं। इसलिए सारा उड़ीसा आज आनंद में झूम रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सब स्वागत करते हैं, इसलिए कि ये चयन माननीय नड्डा जी को भी स्वागत करते हैं। आज ये एक विश्वास पैदा हो गया है कि लोकतंत्र का विजय यात्रा व्याहत चलता है और एक सामान्य परिवार से लोग जाकर के सर्वोच्च शीर्ष पदवी की भी मंडन कर सकता है। लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है और विशेषतः आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, उपेक्षित वर्ग में एक विश्वास आ गया कि हमसे एक आदमी जा रहा है और हम भी जा सकते हैं, वी कैन विन। एक कॉन्फिडेंस की भावना आ गया है। लोकतंत्र का ये विजय यात्रा सारा विश्व को संदेश देता है कि अमेरिका भी आज तक कोई महिला को राष्ट्रपति नहीं किया है, लेकिन सिर्फ महिला नहीं, आदिवासी महिला सामान्य परिवार से जाकर के होते हैं, वो अपना दक्षता प्रमाणित किया है विधायक के रूप में, काउंसिलर के रूप में, वाइस चेयरमैन के रूप में और मंत्री के रूप में और झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपना दक्षता प्रदर्शित किया है। एकदम काउंसिलर से लेकर के सर्वोच्च पदवी तक वो जा रही है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का गति अब प्रखर हो रहा है। आज लॉबी अथवा प्रभाव, प्रतिष्ठा, धन, सामाजिक सम्मान से नहीं, एक योग्यता के आधार पर सामान्य व्यक्ति को भी असामान्य स्थान तक ले जाने के लिए मोदी सरकार प्रस्तुत है। इसका बार बार प्रमाणित हुआ और ये सर्वोच्च प्रमाण आया है। जी बिल्कुल, सर्वोच्च प्रमाण जो है वो आया है और इसी के साथ जो एक खुशी की लहर है वो हम देख सकते हैं कि उड़ीसा में किस तरीके से खुशी की लहर है। आपने हमारे साथ बातचीत की प्रताप चंद्र षडंगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल सभी का कहना है कि एक खुशी की लहर है और सबने उनका नेतृत्व देखा है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बातचीत करने को तैयार हैं। अपना जो उनके बारे में जो सोचते हैं, जो उन्होंने वोटिंग की है और जो भावी राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं, उस तौर पर बहुत लोग हैं जो हमारे साथ बोलना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होती हैं तो वो इस पल को, इस सुनहरे पल को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे देश की बागडोर फिर एक महिला के हाथ में होगी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। धन्यवाद। रमेश जी, एक बहुत बड़ा पल देश के लिए, इसलिए क्योंकि आप हमेशा मातृत्व की बात अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि अगर देश का सर्वोच्च पद एक माँ के हाथ में, एक मातृत्व से भरपूर होता है, तो क्या बदलाव देखते हैं आप हमारे देश में? हमारा जो देश है भारत, वो अद्भुत है पूरी दुनिया में। और आपको तो मालूम ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश की अनेकता में एकता की जो विशेषता है, और जो हमने ये कहा कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है उसी परिवार में, उसी समाज में भगवान और ईश्वर भी वास करते हैं, वहीं सुख मिलता है, रहता है। ये आज का क्षण हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा क्षण है, ऐसा सोचने का वक्त है जब अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला कोई व्यक्ति आदिवासी, और वो भी महिला हो, वो हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 135 करोड़ लोगों के देश के नंबर 1 स्थान पर बैठ करके और देश का गौरव बढ़ाए, ये ऐसा उदाहरण है जो किसी भी व्यक्ति को आशा भरी भविष्य की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत ही विजनरी हैं और मिशनरी हैं। ये विज़न और मिशन कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी उस स्थान तक पहुंचाना, और हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो एनडीए है, जो उन्होंने सोच समझ करके किया, और अन्य पार्टियां ने भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जिस तरीके से उदाहरण दिया, ये हिंदुस्तान के इतिहास में अद्भुत है। आज लोग बहुत खुश हैं। अगर मैं वोटों की गिनती देखूं, जिस तरीके से संसदीय वोट जो हैं वो, उसका जो नतीजा सामने आया है 540 वर्सेस 208, इससे क्या सामने आ रहा है? अगर मैं आप कुल नतीजा पूरा सामने नहीं आया है, विधानसभा की वोटें अभी जो काउंटिंग है वो चल रही है, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जितने पक्ष में वोट उससे भी अधिकतम मिलना, ये इस बात का प्रमाण है कि अंतिम छोर की एक ऐसी महिला जो जमीन से जुड़ी हुई है
और जिसका संघर्ष यदि देखा जाए तो अकेला वो उसने ज़मीन पर संघर्ष करके इस स्थान पर आती है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश ऐसी बातों को चाहता है, न परिवारवाद चाहता है, न जातिवाद चाहता है, न क्षेत्रवाद चाहता है, मानवतावाद चाहता है, राष्ट्रवाद चाहता है, राष्ट्र की एकता चाहता है, विभिन्नता में एकता, और वो भी अंतिम छोर के व्यक्ति को भी इस देश में शीर्षस्थ स्थान मिल सकता है। ये इस बात की ओर संकेत देता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहरहाल रमेश सर का भी यही कहना है कि हमारे देश में अब बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे देश में अब सिर्फ परिवारवाद की बात नहीं हो रही, बल्कि ज़मीनी स्तर से उठकर लोग हर क्षेत्र तक जा रहे हैं, हर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और यही बात उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के सिलसिले में भी कही कि भारत का भावी राष्ट्रपति अब हर सीमाओं से परे है, वो हम आप में से कोई भी हो सकता है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। ओवर टू यू स्टूडियो। जी बिल्कुल दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो सांसदों से, नेताओं से बातचीत वहाँ, और साफ तौर पे जो जिस तरह का माहौल है वो नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बात उड़ीसा की है। जाहिर तौर पे उड़ीसा के लिए गौरव की बात है, लेकिन मैंने बात की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल के भारत की एक यात्रा है स्वतंत्रता की, जिसमें तमाम उतार चढ़ाव हमारे देश ने देखे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत होती गई। ऐसे में एक आदिवासी का चुना जाना जाहिर तौर पे उड़ीसा के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ देश के हिसाब से भी एक अच्छा संकेत है, अच्छा संदेश है विश्व के लिए भी। जाहिर है, अगर मैं सिर्फ उड़ीसा तक इस मुद्दे को सीमित नहीं रख रहा हूँ। 75 साल की इस यात्रा में कई राजनीतिक ऐसे बदलाव आए हैं जिस पर जो नोटिस किए जाने चाहिए। उड़ीसा की जैसे राजनीति है तो उसमें बीजेडी के लिए कोई विकल्प नहीं था कि वो इनका समर्थन ना करते। वो उड़ीसा की बेटी हैं, वहाँ की वो सांसद है। वैसे भी बीजेडी एक कंस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करती रही है, जिसमें उसने कभी भी सेंटर में बैठी सरकार को इस तरह से चुनौती देना उचित नहीं समझा, कोई टकराव लेना आज तक उचित नहीं समझा। पिछले 2014 से मैं आपको बताऊं कि राज्यों और केंद्र की राजनीति में बहुत एक शिफ्ट आया है, जिसको हम लोगों को नोटिस करना चाहिए, और वो वोटिंग पैटर्न में शायद रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। 2014 की पॉलिटिक्स ये है कि पहले ये हैंगओवर हुआ करता था कि विधानसभा में कोई चुनाव जीत गया तो उसके सारे वोट, उसका सारा परसेंटेज सेंटर में भी रिफ्लेक्ट होगा, या कोई अगर संसदीय वोट कहीं जीत गया तो उसका वो स्टेट में भी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर उड़ीसा का आप उदाहरण देखिए, वहाँ पर बीजेडी लगातार भले ही केंद्र के साथ तालमेल करके चलती है, लेकिन चुनाव वहाँ जीतती रहती है। पश्चिम बंगाल देखिए, तृणमूल कांग्रेस वहाँ संसदीय चुनाव में 18 सीटें हार जाती है, लेकिन विधानसभा के वोट में वो सबसे आगे निकल जाती है। दिल्ली का पैटर्न देखिए आप, जहाँ पर 7 की 7 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को संसदीय चुनाव में देते हैं, और 60 से अधिक सीटें वो आम आदमी पार्टी को दे देते हैं। ये एक डिस्कनेक्ट है जो राज्यों की राजनीति का केंद्र की राजनीति से है, और इसका ये एक बड़ा पहलू हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का एक विराट जो व्यक्तित्व उभर के सामने आया है वो राज्यों में उतना पर्कुलेट नहीं होता है, क्योंकि स्टेट लीडरशिप उसको उस ढंग से शायद एनकैश नहीं कर पाती है। इन कारणों को देखना होगा, लेकिन ये सब आपके राष्ट्रपति के चुनाव में रिफ्लेक्ट होते हैं। जी, लेकिन बात एक कही, जो बात पूर्व केंद्रीय मंत्री सारंगी साहब ने भी बात कही कि एक विजन, जिस विजन के साथ काम करने की एक सोच होती है, उसको एक दर्शाता है कि जो चीज़ अगर राकेश जी मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीज़ को सोचा समझा और एक एनडीए के रूप में एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया जो हमारे 75 साल की इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें और गर्व की अनुभूति कराए, वो राष्ट्रपति के पद पे पहुंच रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि बात हम उड़ीसा की कर रहे हैं, उड़ीसा में एक भिन्न राजनीति देखने को मिली है। ठीक है, राजनीति होती है, बीजू जनता दल की राजनीति अपनी है, बीजेपी की राजनीति अपनी है, लेकिन किसी एक मुद्दे पे, वो चाहे आदिवासी का मुद्दा हो, उड़ीसा की बेटी का मुद्दा हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का एक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सकारात्मक पहलू भी है कि कुछ मुद्दों पर एक होकर चला भी जा सकता है। जो सर्वसम्मति की बात हम करते हैं, वो सर्वसम्मति है किसी ना किसी रूप में नजर आती है। हम इस पे थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को 1947 से 2022 या 2025 तक हमें नहीं देखना चाहिए जी। हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखना चाहिए जब हमारे यहाँ राजतांत्रिक व्यवस्था थी, फिर मुगल व्यवस्था आई, फिर अंग्रेज व्यवस्था आई, फिर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। यह देश वीर योद्धाओं का देश कहा गया है,
और इस देश में बहुत से वनवासी वीर योद्धा हुए हैं, वही आदिवासी जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू आती है। हमारे यहाँ इतिहास को ठीक ढंग से ना तो लिखा गया ना पढ़ाया गया। उन्होंने, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आज जो बट गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ जाइए और वहाँ के इतिहास को देखिए तो आपको बहुत सारे गौण राजा मिलेंगे जिन्होंने अच्छा खासा मुकाबला किया और उस समाज से बहुत सारे योद्धा हुए, दानवीर थे, धार्मिक थे, समाज को चलाने वाले लोग थे। और उन राजाओं के शासनकाल में कभी ये भेदभाव नहीं हुआ कि सवर्ण कौन है या नीची जाति का कौन है, तब वो राजा माने गए। तो हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को उस दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में इस समाज के लोगों का क्या योगदान था उसे भी देखना चाहिए। बहुत सारे वीर सपूत हुए हैं, बहुत सारे हमारे वनवासी समाज के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं भारत को आज़ाद करने के लिए। और मुझे लगता है उन सभी लोगों को जो पहले अग्रिम पंक्ति में थे और आज़ादी के बाद अंतिम पंक्ति में पहुंच गए, उनको फिर से अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के शीर्ष पद पर बिठाया गया है। और मुझे लगता है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का सबसे सुखद पहलू है। जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं मुकेश? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा अपनी बात ये जोड़ना चाहता था कि ये विज़न, ये मिशन के साथ साथ एक सोच है, एक विचारधारा है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन पहला एक संघ था जिसने आदिवासी शब्द पर आपत्ति की और उसने कहा कि हमको इनको आदिवासी नहीं कहें, इनको वनवासी कहें। उस संगठन ने उसको पहले सम्मान देना शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है कि ये वही सम्मान का सिलसिला है जिसको आदिवासी पर उनको लगा कि उनके बीच में जो काम करने वाले हैं, उनको प्रलोभन में देने वाले हैं, उनको धर्मांतरण कराने वाले हैं, उनके बीच में से उन वनवासियों को उन्होंने वहाँ पर स्कूल खोले, छोटे बाल्यकाल से उनको सहारा दिया। और उन वनवासियों को जो सम्मान संघ देता रहा है उसकी अभिव्यक्ति, उसका रिफ्लेक्शन भारतीय जनता पार्टी, चूँकि संघ उनका पैतृक संगठन है, उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। जी, जी